Hey guys, welcome back. Today we are going to cover part 2 of our national income counting topic. And today's agenda will be types of goods and depreciation. So let's get started. So we'll be continuing from where we have left in the previous lecture. Resources or factors of productions are the things which are provided by household to firms. And in exchange of those factors of production, firms will be providing rent, salary wages, interests or profit, which are together we can call factor income. So in exchange of land which is provided by households, the firms will be providing rent to the households. Similarly, in exchange of labors, the household will be getting wages or salaries. Similarly, in exchange of capital, we will be getting all these stuffs. And similarly, in exchange of enterprises, we will be getting profits. Okay, I hope this is clear. Then, so let us move to concept of goods. As far as layman's or novice is concerned, goods are basically of two types. These are final goods and intermediate goods. Okay, so intermediate goods, please remember, are those goods which are material inputs or these are further processed to make final goods. Okay, moving to the final goods. Final goods are basically of two types: consumption and capital goods. Okay, so please note that consumption goods are those goods which are consumed by household sector. So from starting from a milk to a personal vehicle, Swift, everything will come under consumption. Consumption goods are further classified as durables and non-durables. Durable goods are popularly known as FMCD goods, fast mover consumer durables. So it will consist of all electronic items plus passenger vehicles, etc. Non-durable will consist of perishables plus FMCG goods, fast mover consumer goods. Moving to capital goods are those goods which are purchased by firms. Okay, so major uptick in the purchase of capital goods means there is a healthy investment rate in an economy. So it can be considered as a green shoot. Okay, and these capital goods are further helpful in production of consumption goods. So increase in purchase of capital goods means that in future there will be increase in the production of consumption goods, and this is a very healthy cycle. Let us move forward. For news review number 1. So Center has finally released 36,400 crore as a GST compensation to states, और ये पीरियड दिसंबर 19 से लेके फेब 20 के लिए है। आपको पता ही है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस इसलिए दिया जाता है कि स्टेट्स को जो उनका टैक्स कलेक्शन था फाइनेंशियल ईयर 15 में, उसके ऊपर 14% का इंक्रीमेंट उनको प्रॉमिस किया गया था बाय सेंटर फॉर 5 years। ये क्यों किया गया था? बिकॉज देयर वॉज इमीडिएट डेंजर फॉर स्टेट्स बिकॉज दे वर लूजिंग देयर पावर्स टू कलेक्ट टैक्सेस। सो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट्स को भी अलग रूप से इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने की पावर्स दी गई थी। सो फॉर GST to bring in, states were surrendering their sovereign power to collect taxes. This is because as per our constitution, India is a union of states, and union, that is center as well as states, were having independent financial power to fund their expenditure through collection of indirect taxes. और ये जो GST compensation है, ये कैसे दिया जाता है? ये GST compensation सेस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और ये सेस लग्जरी गुड्स और सिन गुड्स पे लगता है, ठीक है। तो ग्राफ में यही दिया गया है कि FY18 में जो GST कंपनसेशन शेयर्स का स्टॉक्स था वो बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू डिसबर्समेंट। 18 में भी सेस कलेक्शन वाज फार ग्रेटर देन डिसबर्समेंट।
बट 1920 में क्या हुआ कि जो स्टॉक ऑफ सेस कलेक्शन है वो बहुत कम निकला एज कम्पेयर टू डिसबर्समेंट, और आज की तारीख में जो स्टॉक ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस है वो नेगेटिव टेरिटरी में जा चुका है. सो बेसिकली दिस इज नॉट अ हेल्दी सिचुएशन. So we can say that India is a quasi-federal entity. Quasi-federal मतलब जो इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एज कंपेयर टू स्टेट्स के ज़्यादा पावरफुल है. ठीक है. और एक एग्जांपल फेडरल कंट्री का क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उसमें क्या है, सब इक्वल है और सेंटर भी इक्वल है. और ये क्वाज़ी फेडरल क्यों स्ट्रक्चर रखा गया था और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नाम दिया गया था, उनको दिया गया था यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है. वाई? बिकॉज आपको पता है कि आज़ादी से पहले इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स. मूविंग टू अवर न्यूज़ नंबर 2. बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ है. राजीव बजाज का कहना ये है कि लॉकडाउन का शिकार एक गलत कर्व बन गया है. फ्लैट करना था कोविड की कर्व को, बट फ्लैट कर्व हो गया जीडीपी का. ठीक है. तो उनका कहना यह है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि अर्थव्यवस्था की पूरी टांगे कट गई है. प्लस जो लॉकडाउन था उसमें कुछ क्षेत्र बहुत ही एग्जाम्पशन थे, मतलब वो पोरस था, उसकी वजह से काफ़ी केसेस बढ़ने लग गए थे. प्लस और ये बात तो उनकी कुछ हद तक सही है, बिकॉज इंडिया इज अनलॉकिंग विद द टाइम where we are seeing an exponential rise in COVID cases. So moving on to types of good as per IIP classification. What is IIP? Index of Industrial Production. So these are 6 good as per IIP classification. This is the technical classification and this is especially important for exams perspective. So let's get started. So first type of goods is primary goods. Primary goods are those goods which are obtained directly from natural resources and which are further processed and they are consumed in manufacturing or power generating activities. For example, ore, minerals, fuels, kerosene, LPG, electricity. Moving to capital goods. Capital goods are used for further investments. For example, plants and machinery. So आज capital goods आप purchase करेंगे तो काम कब आने वाले हैं, कल काम आने वाले हैं. कल कैसे काम आने वाले हैं? Because they will be producing other consumption goods and other type of goods. Okay, clear, done. आगे. Infrastructure goods and construction goods. These are the finished goods which are primarily used in infrastructure industry or construction activity as an input. Okay, for example, पेंट्स है, सीमेंट्स है, केबल्स है, ब्रिक्स है. ठीक है. तो ये क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम आते हैं और ये फिनिश गुड होते हैं. इंटरमीडिएट गुड, एनी गुड और प्रोडक्ट प्रोड्यूस एज इनकम्प्लीट प्रोडक्ट और goes as input into production of further finished or forming a part of product. For example, कॉटन, यार्न, प्लाईवुड, स्टील. जो ये क्या होते हैं, वो इनपुट जाते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. फॉर एग्जांपल कॉटन है, स्टील ट्यूब्स है. तो ये क्या है, फिनिश गुड नहीं है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पहले ही पढ़ लिया है. फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, टू व्हीलर्स, स्कूटर्स, ज्वेलरी, गोल्ड, पैसेंजर कार्स एक्सेट्रा. कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, प्रोडक्ट दैट आर डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर्स एंड देन कांट बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम. जो पेरिशेबल्स होते हैं अपने, और जो क्या होता है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, वो प्राइमरी क्या होते हैं, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स. ओके, मिल्क पाउडर हो गया, बिस्किट्स हो गए, कुकीज एक्सेट्रा. चलिए तो कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन की तरफ मूव करते हैं. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो सपोज एक फर्म है एक्स जो कि मार्केट में नहीं है. तो उन लोगों ने क्या किया है कि 100 रुपीज़ की एक मशीन परचेज की है जिसकी उम्र है 5 ईयर्स या फिर लाइफ उसकी 5 साल है. तो क्या होगा कि जो फर्म एक्स की जो बैलेंस शीट है उसके एसेट साइड में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा, नॉन करेंट एसेट 100 रुपीज. बट अपन को पता है कि ये मशीन 5 साल चलने वाली है, 1 साल चलने वाली नहीं है. तो अपन क्या करेंगे, मशीन यूज करने का जो 1 साल का जो कॉस्ट है उसको अलग करके अपन इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे एज अ डेप्रिसिएशन. सो प्लीज नोट दैट डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस.
तो रियल मायने में कोई कैश आउटफ्लो हो नहीं रहा है। हालांकि इन प्रॉफिट एंड लॉस वी आर कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन एज कॉस्ट। ठीक है, तो अपन के पास में क्या बच रहा है, कैश बच रहा है। ठीक है, ओके। तो एसेट्स में कैसे चेंजेस आएंगे, एसेट्स में चेंजेस आएंगे ये अपन स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपन कंसिडर करते हैं स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। ओके, सो 5 साल यूज हो रहा है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 20 रुपीज, अज्यूमिंग देयर इज नो सैलवेज वैल्यू। तो 20 रुपए हर साल का होगा। तो ये 20 रुपए अपना कैश बचा हुआ है एज अ डेप्रिसिएशन। तो ये पैसा कहाँ जाने वाला है, एसेट्स में रिकॉर्ड होने वाला है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम का एक अकाउंट बनेगा, उसमें क्या होगा, ये रेमिट हो जाएगा 20 रुपीज। ठीक है, तो ये क्या होगा, टोटल जो नॉन करंट एसेट है उसमें से माइनस हो जाएगा। सो अपने पास में नेट एसेट्स कितने बचे, 100 माइनस 20 विच इज 80 रुपीज। अब दूसरे साल होगा क्या कि ये क्या होगा, 20 रुपए भी वापस रेमिट हो जाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर। तो 20 रुपए बढ़ के क्या हो जाएगा, 40 रुपए। तो फिर क्या हो गया, अपने पास में नेट एसेट कितने रह जाएंगे, 60 रुपीज। ऐसा ये 5 साल तक चलता रहेगा और अंत में क्या होगा, इन द एंड वी विल बी गेटिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज 100 rupees and non-current asset is 0, assuming that we are not investing any further or we are not buying any new machinery. Moving to types of depreciation, तो ये क्या है, methods of calculating depreciation expense है। तो ultimately what we are doing is we are determining book value by reducing the stock of depreciation expense each year। तो पहला मेथड ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो कि अपने पिछले एग्जाम्पल में यूज किया था, एज्यूमिंग जीरो सैलवेज वैल्यू अपन ने क्या किया था, 20 रुपीज ईच ईयर की डेप्रिसिएशन वैल्यू लिख ली थी। ठीक है, और दूसरा मेथड है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस। उसमें क्या होता है, कंपाउंडिंग होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो वेरी हो जाती है। तो उसमें क्या था, सिंपल लाइन में क्या कर रहे थे अपन, ओरिजिनल कॉस्ट अपन 100 रख रहे थे, 100 के ऊपर अपन हर साल 20 रुपीज हम कैलकुलेट कर रहे थे। इसमें क्या होगा कि 100 में से पहली ईयर में क्या होगा, 20 रुपीज निकल जाएंगे, फिर बचे कितने, 80 रुपीज का एसेट्स बचा। ठीक है, तो ऐसी 80 रुपीज को अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो फिर क्या मिलेगा अपन को, 16 रुपीज का सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 साल में ऐसे चलने वाला। थर्ड है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस को अपन डिवाइड करेंगे लाइफ इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो कुल यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाला एक मशीन 5 साल में, ये अपन डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, और इस साल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे वो मशीन, उसको अपन डिनोमिनेटर में रखेंगे। फिर क्या करेंगे, इनटू कॉस्ट कर। फोर्थ मेथड इज सम ऑफ ईयर्स डिजिट। तो सेम एग्जांपल से स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या होगा, एट द एंड ऑफ 1 ईयर रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 4। सम ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये कैलकुलेट ऐसे होगा, इनटू कॉस्ट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितने ईयर्स बचे हैं, 3। सम ऑफ डिजिट्स क्या है, वही 1 2 3 4 + 5 इनटू कॉस्ट। तो ये ऐसे कैलकुलेट होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है इन मेथड्स में, कि स्ट्रेट लाइन एज्यूम करता है कि जो डेप्रिसिएशन रेट है ये यूनिफॉर्म है, बट इन प्रैक्टिकल इन रियल वर्ल्ड ऐसा होता नहीं है। तो जो एक्चुअली जो रियल सीन दिखाता है, ये दोनों मेथड्स दिखा सकते हैं। यहाँ पे डिफाइन किया है डेप्रिसिएशन को। सो डिलीशन विच इज मेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू accommodate regular wear and tear of capital is called depreciation. So ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। न्यू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। सो अपना GFCF है, जो भी GDP का सेकेंड इंजन है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इससे ही निर्धारित होती है इन्वेस्टमेंट रेट इन द इकोनॉमी। सो उसका फॉर्मूला ये है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। चलते हैं वापस प्रीवियस एग्जाम्पल की तरफ। तो अपन ने देखा था कि
अपने फर्स्ट ईयर, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज़ का अपन ने इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, अब मान लो कि 2 दिन बचे थे पहला ईयर खत्म होने पर, जब अपन ने क्या किया कि सेकेंड मशीन ले ली 100 रुपीज़ की। तो अपन ने क्या किया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट उस ईयर में कितना किया, 100 रुपीज़ किया। ठीक है, और अपने डेप्रिसिएशन कितना काउंट किया, डेप्रिसिएशन पहली मशीन पे काउंट होगा 20 रुपीज़। सो अपना नेट इन्वेस्टमेंट कितना था, 80 रुपीज़। ठीक है, तो इसे ही अपन बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि इंडिया के केस में अराउंड 27% है। इसका अपटिक होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट रेट इससे ही निर्धारित होते हैं, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो और ज़्यादा इनकम जनरेट हो। तो सो लो GFCF क्या शो करता है, इट शोज पुअर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पुअर है तो ये क्या शो कर रहा है, क्योंकि आने वाले जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है इकोनॉमी के, वो बहुत ही पुअर है और वो हेल्दी सिचुएशन में नहीं है। This is our news review number 2. In this Hindu edit, author Madhavan is raising question of complete absence of Indian Parliament in COVID-related policy measures. See friends, here author is raising several issues. First, Disaster Management Act 2005, which has been used by Indian government to implement lockdown in India, was originally not designed to handle any pandemic. Second, democracies all around the world has enacted special laws approved by their respective parliament to handle the COVID situation. No such laws has been passed in Indian Parliament. Although one day before the implementation of lockdown was done, Parliament was in action. Third, why Indian Parliament is not meeting. For example, in Britain, Parliament is meeting with a physical distancing as a norm. In other countries such as Italy, France, Australia, New Zealand, their parliaments has been meeting virtually. Fourth, if a close proximity in the parliament is a problem, that why cannot president can order to meet parliament outdoors. Fifth, from the first day of lockdown till today, state government as well as central government has issued 5,000 notification to deal with COVID situation. Who will scrutinize those notification? Where is our parliament? Who will do it? सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही बोल दिया है कि एग्जीक्यूटिव इज द बेस्ट बॉडी टू डील विद दिस सिचुएशन. We don't have any much role. Sixth, all those relief measures, all those packages which are decided by government has to be discussed in the parliament and had to be enacted by the parliament. No such discussion has been taken place. Seventh, while India takes pride in claiming itself world largest democracy, its action is not in sync with any democracy. बहुत सारे गंभीर क्वेश्चंस हैं. So with M.R. Madhavan's editorials, we will finish this lecture. I hope you liked this lecture as much I did. Please subscribe to my YouTube channel, and in next lecture we will discuss part 3 of National Income Accounting. Thank you.